Good morning students. Today's topic is the countable and uncountable sets. So a set A is called countable if it is finite or countably infinite. For example, set of integers, set of rational numbers, or this set that is A, B, C, D. So countably infinite means a set A is called countably infinite if the cardinality of A, this is equal to the cardinality of natural numbers. That is, if there is a bijection from a set of natural numbers to this set A. So a set A is called uncountable if A is infinite, but the cardinality of A is not equal to the cardinality of n. So that is, there exists no bijection between the set of natural numbers and the infinite set that is A. So, or a set that is not countable is called uncountable set. For example, real numbers, open interval 0, 1, open interval 1 and infinity are uncountable. So next is the set that is, note that set Z of integers and natural numbers have same cardinality, but the cardinalities of the set that is natural number and real numbers are different. So these are some important we can say articles, and I have only given the statement, so you can prove all these. So any subset of a countable set is countable. So next is any infinite set of a countably infinite set is countably infinite. Let A and B be countable sets, then their union is also countable. Similarly, let A and B are countable sets, then the Cartesian product that is A cross B is also countable. Next is the cardinality of the set. So let A be a set, then the number of elements present in the set is known as cardinality of A, and it is denoted by mod A. So two sets A and B are said to have same cardinality if there exists bijection from A to B. So हम कहेंगे कि कोई सेट है, उसमें हम कार्डिनलिटी किसी सेट की कैसे डिफाइन करते हैं, जितने भी उसमें मीन्स एलिमेंट्स होंगे, मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट. सो अगर हमारे पास कोई दो सेट्स है और हमें उन दोनों सेट्स की क्या है, सेम कार्डिनलिटी कब होगी, अगर क्या होगा, उनके बीच में बाइजेक्शन मैप जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा. कहाँ से, फ्रॉम सेट ए से लेकर सेट बी तक. इसी तरीके से आता है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. सो एस सेट ए वी कैन से ए और एनी सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट इज एम्प्टी और हैव द सेम कार्डिनलिटी एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट. अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट मीन्स उसको हम बेसिकली फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जो सेट ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे. सो ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट इज एम्प्टी और हैज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. फॉर सम एन इन this is the set of natural numbers, it is called infinite otherwise. So means cardinality of जो set A होगा वो किसके इक्वल आएगा, n. और तो उस set को हम क्या बोलेंगे, मीन्स उसके अगर हम finite number of elements होंगे, so उसमें हम क्या कहेंगे, उस set को finite set बोलेंगे. इसी तरीके से अगर उनकी cardinality infinity आ जाती है तो मीन्स उसमें जो elements होंगे वो infinite है, so ऐसे set को हम क्या बोलेंगे, infinite set बोलेंगे. Bijection क्या होता है कि let A and B be sets. So a bijection from set A to B is a function, or we can say it is a mapping that is both 1 1 and onto. So mean जो 1 1 भी हो और क्या हो, onto भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैप. So first example is that show that the set n cross n is countable. अब हमें n cross n को countable शो करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये set n cross n है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. इसमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का. सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो मीन नेचुरल नंबर्स में किस तरीके से एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन. सो हमें इसी सेट का सेम मतलब अपने साथ ही इसका क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. सो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मीन्स पहले 1 के साथ इसका बनाएंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ एंड सो ऑन. सो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बनाती हूँ, ये बनेगा 1 1, then 1 2, then 1 3, then so on. इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ, next will be 2 1, then 2 2, then it is 2 3 and so on. फिर हमारे पास अगला बन सकता है ऑर्डर्ड पेयर 3 1, then 3 2, then it is 3 3 एंड सो ऑन. सो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे.
सो अब हम करेंगे क्या, हम बेसिकली इस ऑर्डर्स पेयर्स को क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे किस एक पैटर्न में. सो आई विल राइट हियर, वी मे अरेंज द सेट n cross n as shown below. So first ordered pair is 1 1, second one is it is 1 1, पहला आएगा 1 1, then it is 1 2, then है हमारे पास 1 3, इसी तरीके से अगला होता तो वो बन जाता 1 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली सेकेंड टर्म में आ जाएगा 2 1 2 2, then 2 3, then 2 4 एंड सो ऑन. थर्ड ऑर्डर पेयर बनेगा, इसमें किस तरीके से बनेगा 3 1 3 2, then it is 3 3, then 3 4 एंड सो ऑन. एंड 4 के विथ रेस्पेक्ट टू बनेगा 4 1 4 2, then it is 4 3, then it is 4 4 एंड सो ऑन. सो इस यही हमारे पास एक ये इसका मतलब यही इस पैटर्न में हमने क्या करना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को अरेंज करना है. सो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो जितने भी हमने ये एलिमेंट्स जो ये मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनको हम क्या करेंगे एरोज से शो करेंगे ये कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा. जिस तरीके से हम इसमें एरोज से शो करेंगे उससे क्या हो जाएगा, वो जो पैटर्न बनेगा उससे हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा कि जो क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा. मीन्स हम सब ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे. सो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट ये हमेशा 1 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 1 2 पे जाएगा. 1 2 से ये जाएगा आपके पास 2 1 पे. ओके 2 1 से ये जाएगा 3 1 पे. 3 1 से जाएगा अगेन 2 2 पे. 2 2 से जाएगा 1 3 पे. 1 3 से जाएगा 1 4 पे. 1 4 से बैक में आएगा, इट विल बी 2 3. 2 3 से जाएगा आपके पास 3 2 पे. और 3 2 से कहाँ जाएगा, ये 4 1 पे. सो फिर अब क्या होगा, 4 1 से अगला टर्म जो होता मान के चलिए 5 1 होता, फिर 5 1 से कहाँ चला जाता, ये 4 2 पे जाता, देन ये चला जाता 3 3 पे ऑर्डर्ड पेयर पे, इसी तरीके से 2 4 पे एंड सो ऑन. सो ये जो प्रोसीजर है, मीन जो ये पैटर्न फॉर्म होगा, इस पैटर्न से क्या होगा, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी. और वो जो सीक्वेंस है उससे ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है वो मिस नहीं हो पाएगा, और वहां से हमें ईजिली शो हो जाएगा कि ये जो सेट है ये क्या है, हमारे पास काउंटेबल है. सो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया. मैंने जैसे आपको बताया था 1 1 जाएगा 1 2 पे, 1 2 जाएगा 2 1 पे, 2 1 जाएगा 3 1 पे, फिर 2 2 पे, फिर ये 1 3 पे, 1 4 पे एंड सो ऑन. सो वी मे अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर इंडिकेटेड बाय द एरोज. सो दिस स्कीम अरेंजेस ऑल द एलिमेंट ऑफ n cross n into a sequence and hence shows that this set that is n cross n is countable. So यहाँ पे बेसिकली जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम सेट ऑफ दिस, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो यहाँ से हमें इजीली शो हो गया कि जो ये सेट है ये क्या है, काउंटेबल है. इसके और भी मेथड्स है सॉल्व करने के लिए. जैसे अगर आप कोई फंक्शन ले लेंगे, वो डिफाइन करेंगे और उस पर ये शो करेंगे कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, बिकॉज काउंटेबल में भी हम यही डेफिनेशन में कहते हैं, अगर वहाँ पे बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए उस सेट पे, सो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है होगा, काउंटेबल होगा. सो बाइजेक्शन में क्या होता है, दैट इज 1 1 या ऑन टू होना चाहिए. 1 1 में मीन्स कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं उनमें डिस्टिंक्ट इमेजेस क्या होनी चाहिए सेट बी में. मान के चलिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो मीन जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इस सेट ए में होंगे उसकी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगी सेट बी में. इसी तरीके से जो अगर हम कोई भी एलिमेंट बी जो एलिमेंट लेंगे सेट बी में, उसकी हमें क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो वो हमें क्या बन जाता है, ऑन टू फंक्शन आता है. सो हम उस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट थ्योरम इज शो दैट द सेट Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो सेट जो Q है ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, वो काउंटेबल है. सो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्रूफ करने के लिए, हम लिखेंगे फॉर ईच नेचुरल नंबर n, और ईच नेचुरल नंबर n लेट, हम एक ए एन डिफाइन करेंगे एक सेट, उसमें किस तरीके से एलिमेंट्स होंगे, ये रैशनल नंबर एलिमेंट्स होंगे, और किस फॉर्म में, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा. सो हम लिख रहे हैं 0 बाई n, देन इट विल बी 1 बाई n, देन इट विल बी -1 बाई n,
देन 2/n माइनस 2/n, मैंने इसको सिमिट्री में लिखा है, सो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 3/n, देन माइनस 3/n एंड सो ऑन। सो यहाँ से क्या शो हो जाएगा कि शो कर सकते हैं हम कि जो ये an है ये क्या होगा, काउंटेबल है। सो आई विल राइट हियर, देन इट कैन बी easily seen that an is countable. So now हम क्या करेंगे, जो यूनियन होगा, यूनियन किन का, जैसे ये इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स है तो मीन्स n फ्रॉम 1 to infinity an, ये किसका यूनियन होगा, इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। सो इट इज ए काउंटेबल यूनियन of countable sets. So therefore from previous theorem, previous theorem क्या थी कि हमें ये शो किया था हमने कि जो सेट n क्रॉस n है, मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके खुद सेट के साथ ही करेंगे, वो क्या है, दिस इज काउंटेबल, ये क्या है, काउंटेबल है। सो क्लियरली ये सारे सबसेट है इसके रैशनल नंबर्स के। तो हम यहाँ पे हम सीधा सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो यूनियन हम ले रहे हैं, ये यूनियन किन का ले रहे हैं, ये जो यूनियन an है, an के एलिमेंट्स कैसे हैं, ये तो रैशनल नंबर्स है, मीन्स ये किस फॉर्म में, ये p/q की फॉर्म है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये जब p/q के फॉर्म में है तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बट this union is precisely the set of all rational numbers. Hence the set Q of all रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। सो यहाँ से हमारा शो हो गया कि जो ये सेट है ये क्या है, काउंटेबल है। सो ये कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपने देखना है हमें किस तरीके से लेंगे। और ये हमने जैसे हमें पता है कि जब हम यूनियन लेंगे काउंटेबल सेट्स का, ये भी एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे और हमें उनका अगर हम यूनियन लेंगे, काउंटेबल सेट्स का जो यूनियन लेंगे वो भी हमेशा क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। सो डायरेक्टली वो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें। और साथ में हमने प्रीवियस थ्योरम से ये पढ़ा था कि जो सेट n क्रॉस n है वो क्या है, वो काउंटेबल है। तो मींस अगर इस तरीके का सेट काउंटेबल है और ये सेट बेसिकली क्या होगा, ये तो इसका सबसेट है, तो मींस यहां से भी क्या हम शो कर सकते हैं कि ये सेट क्या आ जाएगा, काउंटेबल आएगा। So next is show that the set of all rational numbers in close interval 0, 1 is countable. सो ये जो हमने शो करना है इसके लिए भी हमें क्या करेंगे, जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम यूज की थी, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल, उसका यूज करेंगे। सो हम लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जितने भी सेट होंगे कौन से, रैशनल नंबर्स के, दैट इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स in this close interval, that is 0, 1, close interval 0, 1 is a subset of the set of rational numbers. सो क्लियरली हमने क्या लिखा कि जो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन दिस क्लोज इंटरवल जो 0, 1 के लिए हम देख रहे हैं, सो अगर हमारे पास हम रियल लाइन में देखेंगे तो अगर ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है, हमें ये शो करना है कि जो इस सेट में जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या है, काउंटेबल है। सो क्लियरली क्या होगा, ये जो सेट है ये बेसिकली क्या है, ये सबसेट है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। सो और हमने ये प्रूव किया था कि जो वो जो सेट होगा दैट इज काउंटेबल। सो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, सो इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच इज काउंटेबल। यहाँ से क्या है, हमने शो किया था अभी कि वो सेट क्या है, काउंटेबल है। सो ये हमने लिख दिया। सो देयरफॉर by previous theorem
by previous theorem, that is कौन सी थी, that is set Q of all rational numbers is countable. So the set of all rational numbers जो इस क्लोज इंटरवल 0-1 में होगा वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल. सो हेंस प्रूव्ड. क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है, तो अगर वो काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा. सो यहाँ से क्लियरली शो हो गया कि जो सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इन क्लोज इंटरवल 0-1 इज काउंटेबल. सो इस तरीके से आप बहुत से एग्जाम्पल इसमें बन सकते हैं और बहुत सारे और भी थ्योरम्स है, जैसे कि शो दैट क्लोज इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार. या शो दैट हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल. सो आप ये सारे भी जो हैं इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू.